Oh, I'm so sorry. I gave a whole lecture. I gave a whole talk. No, And no, you were audible. No, Guruji, you were audible. You were audible till yeah. Okay. So I wasn't that dumb. That's great to say. Okay, good. Fine. Tell me, Benaz. Hi. How are you? Hi. I'm good. I've been wanting to meet you since some time, but today here I am. You asked about what spirituality means to us, and I think for me, it is more of like a way of life. Um, Beautiful. it's Yeah. not so much about gaining something or being something, but I feel like it is a practice. It is how we lead our life. And whatever I understand best is the most practical way of living life, right? Like sometimes it's very easy to be swayed by, oh, spirituality means, I'm going to probably do nothing, or like I'm only going to look at God and all of those things. But I feel Yeah. like being responsible for what you have towards your duties, leading a life which is true to yourself, and being in the pursuit of finding your own truth and walking that path. I think that for me is my very limited but honest understanding of a spiritual life. Yeah. That's beautiful. I think you can pass on as a teacher of a guru or some kind. I mean, that was really amazing that the way you spoke and you talked about. That's really nice. It is a way of life. Yes. And anything more? Anybody wants to add something to that? Anybody just kind of, who's the other person who wanted? Shiraz, was it? Shiraz, yeah. In fact, Shiraz was the one who gave the suggestion first to have you have a session with you, Guruji, and then things started rolling. So thank you, Shiraz. You gave a great opportunity to everyone. Thank you. Thank you so much. I feel so wonderful to be given this opportunity by Delna and Kashmira and all of you, So I'm going to bore you for some time, but I hope it's okay. Okay. Yes, Shiraz, tell me, what do you think spirituality is in your mind? You can just let anything pass from your mind. Like, I just want to understand, what the group is like. Okay, I can't hear her. Can anybody hear her? No. I would like to add. Yes, there she is. You're back. Yes. There you're fine. You're fine. Perfect. Okay, now you're gone. Maybe you can remove your headphones and talk without it. Not helping. No, sorry, Shiraz, we can't hear you. It's fine. It's fine. She can type if she wants to type it. She can type it. It's okay. It's fine. It's fine. Anybody else? Thank you for the attempt, by the way, Shiraz. We heard a little bit of what it was, but thank you. Anybody else? Yeah, I would like to add. Kiran. There's somebody here. Who is this? I'm sorry, the name. Is it Kiran or who? Yes, I'm Kiran. I'm Kiran. Yes, there you are, Kiran. Okay, Yeah. I can see you. Shall I say? To Yes, me, yes. spirituality is connecting with the divine within you. Hi. Same. I was saying Your higher intelligence or whatever, that divine force that you have. When you can connect with that, that's spirituality for me. Very good. Excellent. So, okay, we got two beautiful answers. One is saying is way of life. Other person says connecting with the divine you within yourself, the divine spirit, right? Within yourself. Anybody else? Can I answer? Yeah, I can't Natasha. see the person. Hi. Natasha. Hi. Yes, Natasha. Hello. Well, hi. For me, it means being in sync with the universe. Yeah. And understanding that we are all here with a purpose and we all need to live together to achieve that purpose and that growth. Okay, so do you know your purpose, Natasha? I think the purpose is just to evolve your soul and just, grow, get good deeds. Okay, how do we start about it? How do we start? I love the question. I love the answers that all of you have given, actually.
And they all coming. There's no right and wrong answers in spirituality. This is the beautiful thing about it. No marks. You all get full marks for this. There's no right answers, because all answers are right in this. But how do we start? From where do we start when we say spirituality? Someone's written recognition of a feeling. That's also beautiful. What kind of feeling? So please elaborate. What kind of feeling are we talking here when we say feeling? It's beautiful. It's We're coming. about See, I like this kind of thing, because we're coming to the. You may not need me at all. You get the answers on your own. That's the beautiful part about it. See, the moment we start to connect with truth, the thing about spirituality or anything about truth is the moment we try to. Yes, I can see you. So maybe I'll just probably go to the next window and see. Kashmira. Who's this? Natasha, right? Or who? Yeah. Oh, this is Kashmira Bala. Okay. All Yeah. right. It's a way of connecting with God, spirituality, and conscious way of living. You are conscious about everything, about Very the nice. nature and everything. I mean, you Right. respect nature and you move for a higher purpose. So connecting to God is Connecting. also spirituality. Right. Someone has written spirituality is self-satisfaction also. Right. Wonderful. Yeah, very fun. Wonderful. Yeah. Anybody else is there who wants to give something? I hope you're getting. Someone is there who's. The Yeah, there. Chetan, he's trying. Chetan. I know someone is already there whose voice. Is it yours? There, Kashmira, keep it off in case. Keep your voice. Yes. Chetan. I wanted to connect here. Yes. Hello. Yes. Hello, can you hear me? I can. We can hear you and we can see you. Yeah, good. Now, what I was thinking, it's like, when we talk of a life, we talk as an experience, right? Yes. Yes. As such, we think that, there are no nouns, it's all words, it's all experience. Yes. 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 Right. This is what I understand. And connecting, understanding that you're not, that consciousness is not part of me. If I look at myself as a human physical body, I need to understand the body and consciousness is intertwined with each other. Yes. It's not, we're not talking about like, if I'm talking to you right now, all the experience I have is inside me, right? If I can see you, I can see you inside me. Yes. So this is there's a definition. What I could gather is like, I myself is part of consciousness as a whole. There can be my body and your body, but there cannot be a difference in my life and your life. It's like it's the same air we breathe. It's the same food we eat from the same planet. So this is what I actually mean. So you're talking about oneness. Yeah. You're talking about Oneness. yes, oneness. It's universal oneness between all of them. You're no different from the consciousness of the tree, of the plants, of anything. It's beautiful. Absolutely. Very nice. Absolutely correct. I agree. Totally. Yes. Okay. So I think now I can speak. I think I can talk a bit about it, and my experience I can share. What it is. So can we all have everybody little muted now? Yes. Someone is still there on the. What you can do. I have muted everyone, and Guruji, now you can just unmute yourself and talk. So nobody will be able to unmute themselves now. Can you all hear me now? Yes. How does my thing get muted automatically? Because you did it. All right. So you're the culprit there. Okay. Anyway, now we've got it. So like I said, it's beautiful to hear the various observations and conceptual understanding of we all have, because we all have some experiences regarding it. Somebody says it's a way of life. Somebody says it's a way to connect with God. Someone says connect with myself, within myself. Somebody say it is oneness, So what does it mean? It's such a broad thing. You can't bring it into one thing and say this is what it is, because we all have differing experiences of what we come as talk about spirituality. So I think what we should really talk about when we talk about spirituality is what hinders spirituality.
when we talk about spirituality, is not about, okay, we are God. We all know this is oneness. This is God. This is, attaining my full potential, everything. But what we should really speak about, and when we really want to go to the depth of understanding, is what actually prevents the very core of my understanding. Why am I not always able to connect with God? Tell me. See, we connect with God when either things are going very bad for us. Then only, hey, Bhagwan, kuch kar de, Bhagwan, kuch karo, Bhagwan. That time we remember God, right? और किसी के साथ कुछ हो जाता है, somebody is having a problem, that time भगवान उसको बचा ले, या कैसा हो रहा है भगवान, that time we remember and connect with God. जब दुख बहुत आता है तब हम बोलते हैं भगवान. तब भगवान क्यों नहीं आता है? हम जब कोई चीज करते हैं, कोई एंजॉयमेंट लेते हैं, तब भगवान को क्यों नहीं याद करते हैं? So yes, we can connect with God. No doubt spirituality is connecting with God. जब कोई चीज हम गुस्सा करते हैं किसी को, कोई किसी ने हमको कुछ बोल दिया, तो वननेस कहां जाती है हमारी? क्यों हम नहीं सोचते हैं अरे स्पिरिचुअलिटी वननेस है तो हमको भी तो वननेस होना चाहिए था? लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, आवर इंस्टिंक्ट्स, आवर डिफेंस मैकेनिज्म, व्हाटएवर टेक्स ओवर, और हम लोग रुद्र रूप धारण कर लेते हैं. वो रुद्र रूप, वो बराबर वो वाला रुद्र नहीं है, देवी वाला रुद्र अलग रुद्र है, इग्नोरेंस वाला रुद्र है बेसिकली, कि हम लोगों ने उठा लिया तलवार और धड़ से बाहर काट दिया किसी, लाइक दैट. तो बेसिकली, और फिर हम बोलते हैं हमारा पोटेंशियल जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, आई शुड गेट माय फुलेस्ट पोटेंशियल, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. आप नहीं आंसर दिए सबने, लेकिन आप लोग के एक्सपीरियंस में देखिए क्या यूनिफॉर्मिटी है उसमें? क्या आप बोल सकते हैं कि ये हमेशा ऐसे रहता है जो आपका अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअलिटी में? जबकि स्पिरिचुअलिटी हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए. मींस व्हेन आई एम लिविंग दिस लाइफ एंड आई एम फीलिंग दैट द ट्रुथ दैट आई एम अपहोल्डिंग एंड विथहोल्डिंग should always be there, consistent, permanent. Why is it that my feeling or that certitude about myself gets shaken in the midst of problems or in the midst of any conflict with somebody, especially with people at home and offices? These are the places that you're going to be tested the most. You'll be tested by your parents, by your partner, by your sister, by your daughter, and the problems that they bring about. बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही दुश्मन है हमारे. In the sense, दुश्मन नहीं है वो हमारे, हमको ऐसा लगता है, we feel that way. There's certain things that take over. वो क्या बोलते हैं उसको? Body takes over my intelligence. The body reacts in such a manner कि उसका आपको पास कंट्रोल नहीं रहता है. ऐसा हो जाता है लाइफ में. हम लोग कितना भी लाख सोचे. एक मेरे पास एक कपल आए थे, मतलब हमारे यहाँ पे थेरेपी मींस सेशन जब हम करते हैं स्पिरिचुअलिटी पे, तो वो मुझे बोली, बहुत प्रॉमिस किया, मैं अभी कभी भी ना अपने हस्बैंड से अभी कभी भी कुछ बोलेगा ना तो मैं कभी भी आई विल नॉट टॉक. और सोच के जाती थी वो कि हस्बैंड से झगड़ा नहीं करेगी. लेकिन जिस टाइम वो जितना सोचती थी ना कि मैं झगड़ा नहीं करूंगी, वहां पे झगड़ा होके ही रहता था हमेशा ही. शी कुड नॉट हेल्प इट. समथिंग टेक्स ओवर, बोलते समथिंग पोजेसेस मी और द पर्सन. वो ऐसा कुछ बात बोल देता था कि वो जैसे मुझे सुनाई, समझ में, मेरे कान में आता था, तो मैं तो बस कर लिया मैंने, अभी तो आज छोड़ूंगी नहीं करके. और तभी हमारी सारी टीचिंग्स, वननेस बोलिए, स्पिरिट के अंदर रहना है बोलिए, भगवान को याद करना है बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो क्यों चला जाता है, उसका पीछे कारण है. एंड इफ यू डोंट गो टू द वेरी कोर ऑफ दैट, we will not understand the full, we will not be able to explore the extent of spirituality in our life. Now let me explain only one word so that it's easy. ऐसे तो बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, तो मुझे क्योंकि अभी 45 मिनट तक थोड़ा बात करना है, फिर शायद इंटरेक्टिव करेंगे थोड़ी देर, 15-20 मिनट का मैं टॉक देता हूँ. तो एक ही चीज बोलूंगा अभी फिलहाल. स्पिरिचुअलिटी का मतलब अभी के लिए, आज के लिए, ये सेशन के लिए समझते हैं मेंटालिटी, माइंड. जैसा आपका माइंड है, मेंटालिटी मीन्स व्हाट? द क्वालिटी ऑफ योर माइंड. द क्वालिटी ऑफ योर माइंड इज स्पिरिचुअलिटी. इट्स वेरी सिंपल. क्योंकि आप, यू आर डिफाइनिंग योरसेल्फ
and all the people in the world based on your relationship with the world, है ना? आपको दुख होता है, सुख होता है, कुछ भी होता है, लाभ होता है, हानि होता है, कहां से होता है? किधर होता है? वर्ल्ड में होता है ना? वर्ल्ड के अलावा कहीं होता है? अभी आप सो गए, यू गो टू स्लीप, वहां पे कुछ है ऐसा हानि, लाभ, प्रॉफिट, पैसा, हेल्थ, ऐसा विचार है? कुछ रिलेशनशिप कुछ है? हम परमानंद में हैं, हम सुखी हैं, एकदम फुलफिल्ड हैं। जब हम नींद लेते हैं, जब हम निद्रा अवस्था में चले जाते हैं तो हम बहुत खुशी आनंद में जाते हैं, हमारा आनंद है वहां पे। तो ऐसा क्या होता है कि जब हम इतने आनंद में होते हैं और जब हम बाहर आते हैं, जब उठते हैं सुबह, तो हम भगवान रूपी से होकर राक्षस रूपी बन जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि सारी प्रॉब्लम उस टाइम पे आती है हमारे, जैसे हम उठ गए तो ऑल द प्रॉब्लम्स कम टू अस and visit us only when we get up in the morning. हम लोग सोचते हैं हमारी नींद अच्छी होगी तो अच्छा लगता है, नहीं हुई तो उठते हैं, हमारा मूड खराब होता है, फिर उसके बाद वही चीज नॉर्मल लाइफ में चलती है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स हमको आती हैं, हमें चाय कॉफी खाना वाना सब बनाना है, उसको झेलना है, इसको झेलना है, इसको करना है, वैसे करना है, वही नॉर्मल स्टोरी चलती है, isn't it? So what it means that all your problems, success, failures are in relation to the world. But who creates the world? Who creates the world? Your mind creates the world. समझ लीजिए, माइंड नहीं होगा, वर्ल्ड नहीं है. That can easily be verified. You go to sleep, the world sleeps with you. अब आपको दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको कोई चिंता है क्या उसका? ना जब आप सोते हैं, ना भोग करते हैं, ना कोई विचार आते हैं, ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है, लेकिन आप एकदम आनंद में है ना, तो बाद में उठने के बाद परेशानी होती है. When you get up and arise from the bed, and then all the stories begin to work in your life. So what makes the world? The mind. And what makes the mind? Think. Your thoughts. What kind of thoughts you have make up your mind. Is it not true? कि आप जिस तरह से बनाते हैं अपने थॉट्स को, जैसे आपके थॉट्स होते हैं वैसे ही आपका माइंड है ना. माइंड को क्या बोलते हैं? A series of thoughts put together one by one are called as a mind. Thousands of thoughts, millions of thoughts are going in your mind, that makes the mind. What else? And world is made by the mind. Mind is made by the thoughts. It's very simple. And so, who makes the thoughts? Next question. Who makes the thoughts? साइंटिस्ट ने बोला है हमारे अंदर 300 बिलियन न्यूरॉन्स हैं in our brain. Those neurons make the thoughts. मैं आपको साइंस के हिसाब से बात कर रहा हूं आज, because I like to connect spirituality with science, not on the basis of any kind of उछाल, मतलब वो सब बड़ा बड़ा बात करना. अभी फिलहाल हम लोग वो सब नहीं करेंगे. Let's look at science. एकदम सिंपल बात करते हैं. 300 billion neurons make up your in the brain cells, make your brain, and those brain thoughts are made by these neurons, and these thoughts make your mind, and that mind makes your world. It's very simple. And the beauty about the neurons is कि ये neurons अकेले एक नहीं है, वो एक ant की तरह है. एक अकेला ant hill नहीं बनाता है. You need many ants to make a ant hill. Similarly, all these neurons that is there in your brain, they are connecting with each other through neurotransmitters. Yeah, and when they communicate with each other, that kind of neurons, when they connect with each other, make a thought. Now I want to ask one simple question to all of you. ये तो मैंने आपको एक theoretically बात बोल दिया. जब मैं एक वर्ड बोलता हूँ आपको, okay, let's imagine a word. Let's imagine a word called success. Success.
अब आप 2 सेकंड आंख बंद कर लीजिए सब लोग, 2 सेकंड सिर्फ. नाउ व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड सक्सेस, व्हाट फील्स विद इन यू? कम ऑन. ओके, just close your eyes, just feel the word success. Okay, I want you to rate from 1 to 10 success. What does this word success mean to you? What is a rating from 1 to 10? What would you rate success as in your life? Right now I'll move to the next word. So note down that आपको इतना मार्क्स मिला उसमें, ठीक है, 1 to 10 के बीच में. सेकंड हम वर्ड लेते हैं अभी, लव. लव कितना मार्क्स मिला? नोट कर लीजिए, ठीक है. थर्ड, मनी, पैसा, वेल्थ. ओके, कितना मार्क्स मिला? अपने मन में रखना, ठीक है. रिलेशनशिप्स विथ योर पीपल अराउंड यू, लव में भी आ जाता है, लेकिन सब लोग हो गए, मतलब जिससे आप प्यार नहीं करते वो लोग भी हो गए. कोई पड़ोसी हो गया, रिश्तेदार हो गए जिनको प्यार करना थोड़ा मुश्किल है, यू नो, वैसा कितने हो गए वो आप मार्क्स देख लीजिए अपने अंदर. और आप लास्ट में आ जाइए, योर आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, ब्लिस, जॉय, वो कितना है आप में? ये 5-6 चीजें मैंने आपको बताया, आपके अंदर इसके कुछ मार्क्स आए होंगे. हैव यू नोटिस कि वो सेम नहीं है मार्क्स, कुछ अलग अलग है कि नहीं? हैव यू नोटिस अलग अलग है ना थोड़े मार्क्स, कि सेम ही है सब में? किसको 10 on 10 है सब में? हाथ ऊपर करे. 10 on 10 किसको है? किसी को भी नहीं है. एक भी ऐसा होशियार नहीं है इधर जिसको 10 on 10 है. मतलब अरे इनको है, किसी 30 दारा इनको है, प्लीज उनको कीजिए जरा, अनलॉक कीजिए. अरे ये तो उनको कीजिए जरा. नहीं करने की जरूरत है. अच्छा ठीक है, पता नहीं भाई कश्मीरा जी बोल रहे हैं कोई जरूरत नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट क्योंकि उनको मेरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अगर ऐसा है तो जिनको 10 on 10 है उनको जरूरत ही नहीं है, कोई चीज भगवान की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट. वो तो ऑलरेडी मोक्ष हो गया उनको जिसको है, ठीक है. सो अभी आप समझ लीजिए कि हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सारी चीजों को इंटीग्रेट करना. ये जो मैंने चीजें कुछ बताई हैं, इनमें हमारे मार्क्स बढ़ने चाहिए. ये हमारी लाइफ में हमारा एंडेवर होना चाहिए हर चीज में. यानी हेल्थ हो गया तो हम मार्क्स अच्छे होने चाहिए, हम खुश होने चाहिए, हैं, हमारे में खुशी होनी चाहिए, ठीक है ना. फिर उसके बाद हमारे रिलेशनशिप हुए, अच्छा होना चाहिए, उसमें हमको किसी से सुनना पड़े तो भी ठीक हो, हम ओके सुन ठीक. फिर उसके बाद हमें ऐसा खार नहीं होना चाहिए, किसी ने कुछ बोला तो रिलेशनशिप वाला जो है ना वो 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर में चला जाता है. तो वो 3 नंबर 2 नंबर में नहीं होना चाहिए, 5 6 7 के नंबर के बीच में हो तो बेस्ट, 7 नंबर के आसपास हो रियली गुड. ऐसा हमारा स्टेट होना चाहिए. हेल्थ में भी ऐसे होना चाहिए 6-7, वेल्थ में भी 7-8 होना चाहिए. मैं तो मानता हूं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बिना नहीं चलेगा संसार, ठीक है. अब आप सोच लीजिए नेक्स्ट बताइए आप कौन सा है? लव. बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा पार्टनर आपके साथ है, कैसा है, हाउ इज रिलेशनशिप विथ हिम और हर, विथ योर स्पाउस. ये भी अच्छा होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? वो भी 7-8 पे होना चाहिए. कभी कभी नीचे जाएगा वो जब थोड़ा बड़ा आर्ग्यूमेंट वर्गमेंट होएगा, लेकिन वो फिर बाकी स्विच होके अपने आप वापस उसी नंबर पे आना चाहिए. मतलब 3-4 घंटे के बाद अगले दिन तक तो आ ही जाना मांगता है. ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो मनमुटाव तो रहता ही है थोड़ा टाइम के लिए, उसके बिना मजा नहीं आता है, ठीक है. ऐसे हर चीज में हम अपने आप को एक एग्जामिन करते हैं हमारे लाइफ में कि किस पैरामीटर में हम लोग कमजोर हैं, और उसका कुछ कारण है.
कि कोई चीज में हम लोग नीचे क्यों हैं, हम बैलेंस क्यों नहीं है। और वो इसीलिए है क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन्स की जो टेंडेंसी है, थॉट की टेंडेंसी है, वो हमेशा नेगेटिविटी की तरह जाती है। आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर उसको आप वर्क नहीं करेंगे ना उस पे, अपने थॉट्स पे, तो किधर जाएगी? ऑलवेज विल स्टूप टुवर्ड्स नेगेटिविटी। इट्स अ टेंडेंसी ऑफ द माइंड, ऑफ योर थॉट्स, टू मूव टुवर्ड्स नेगेटिविटी if you don't work on it. Simple thing, I will tell you. Okay, तो आपको क्या करना है? सिंपल सी चीज है। हम दो चीजें, दो लॉ बोलते हैं इन स्पिरिचुअलिटी, जो क्रिया शक्ति की बात मैं आपको बता रहा हूं। दो चीजों का बात बताता हूं। एक तो हमेशा अपने थॉट्स को यही सोचिए, द वर्ड दैट आई यूज इज ब्रह्मन। ब्रह्मन इज फॉरएवर favorable. Favorable means all of your life, everything in your life, every people in your life are favorable. अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करते हैं, हमारा तो बहुत अनफेवरेबल हुआ है लाइफ में। ये क्या वो उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं? हाउ यू कैन से लाइक दिस? अभी कोरोना हुआ, किसी को, पड़ोसी को हुआ, इसको हुआ, मेरे रिश्तेदार को हुआ, कितना लोगों का नुकसान हो गया, जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है, आप बोल रहे फेवरेबल है। कैसा फेवरेबल है? हाउ यू आर सेइंग लाइक दिस? आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग दिस फैक्ट। विश्वास कर लीजिए एक चीज जो मैं बोल रहा हूं, ट्रस्ट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। ब्राह्मण, फॉरगेट अबाउट सच्चित आनंदा, ये सब तुरिया वुरिया सब बातें हमारे को बुक्स में अच्छी लगती है पढ़ने के लिए। प्रैक्टिकली बता रहा हूं क्या है। ब्राह्मण इज फॉर एवर फेवरेबल, ऑलवेज एंड एवर हैव बीन फेवरेबल। वो हमेशा फेवरेबल है और हमेशा फेवरेबल रहेगा। नंबर वन, एक चीज। व्हाट अबाउट दोस थिंग्स दैट यू फील इज अनफेवरेबल? वो क्या मतलब है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, इट्स कॉल्ड एज कार्मिक डिस्टॉर्शन। द रीजन व्हाई सर्टेन इवेंट्स इन योर लाइफ appear to be unfavorable is because by a term called as karmic distortion. डिस्टॉर्शन है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। Supposing there is this, you know, we all know there is sun which gives light to everyone, right? सन तो पता ही है, सबको लाइट देते हैं, बट बीच में एक बादल आता है। डार्क क्लाउड्स कम and they surround and they envelope the sun. So does that mean that the clouds have the capacity of swallowing the sun, of diminishing the radiance of the sun? No. The fact that we can even observe that there are dark clouds is only due to the radiance of the light of the sun. So आप समझ लीजिए कि what appears like unfavorableness is also because there is favorableness lying underneath, hidden. It has been hidden, it has been eclipsed for some time temporarily by the unfavorableness. That means by the unfavorable clouds that are there. It does not mean that it has successfully swallowed the sun or it has succeeded in destroying your favorableness. So जब मैं फेवरेबलनेस की बात करता हूं, what I mean, when you all have heard this word सत्य चित आनंद, right? सबने सुना होगा। सत्य means truth, चित means consciousness, and आनंद means joy. But practically what it means, इसका मतलब क्या है? सच्चित आनंद में क्या स्टेट है? मैं इमेजिन कर रहा हूं क्या स्टेट हो सकता है सच्चित आनंद। सच्चित आनंद जो स्टेट है, वो स्टेट है मेरा हैप्पी होने का स्टेट है। It is meaning I am happy. It's very simple. But how will I be happy? Tell me, how will I be happy? When I know that my present state of being, my present existence is favorable to me. Only then I will know it is I am happy. Correct? It's a very simple thing. So there are two laws that I am telling you. First, always know to yourself and tell yourself at all the times that Brahman is forever and ever favorable. Ever. Always favorable. But if it appears unfavorable for some reason,
It is due to the distortion that the mind has created for some time. So don't panic. If certain unfavorable events happen, tell yourself again, this is temporary, this will pass. I know my life is completely favorable. And just as you start thinking about how favorable your life is, even though it doesn't appear to be so at the moment, you will come to a state of happiness or equanimity. You understand? When we say Satchitananda, you are in that happy state now. Do not delay your spirituality to a state that you want to attain. मैं आगे जाके अटेन करूंगा स्पिरिचुअलिटी, मैं ये साधना करूंगा तब जाके मैं अटेन करूंगा स्पिरिचुअलिटी, मेरा इतना योगा करूंगा, फुस 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 प्राणायाम करूंगा तब जाके मुझे अटेन मिलेगा, किसी गुरु का आशीर्वाद होगा तब जाके मुझे मिलेगा अटेन एनलाइटनमेंट. सॉरी, आप ये सब बैरियर्स हटा दीजिए, अपने लिमिटेशंस हटा दीजिए अपने माइंड से. ये सब बातें सही भी हैं जो हम लोग को गुरु लोग ने बोला है, सोता ऐसा नहीं, गलत है, नहीं ऐसा नहीं है सभी चीजें ठीक है. साधना में प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, गुरु का ग्रेस भी जरूरत पड़ता है और बहुत चीजों का होता है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट देन दैट इज योर ओन स्टेट ऑफ माइंड एट द प्रेजेंट मोमेंट. इमीडिएट इंपॉर्टेंस ये है कि इस मोमेंट में अपने आप को हमेशा बोलिए, आई एम फॉर एवर हैप्पी, आई एम फॉर एवर फेवरेबल. Brahman is forever favorable. Do not delay your happiness. You see, behind anything that you want in your life, whether it's a car or a beautiful car, or whether it is your relationship with your loved one and you want to make it better with the loved one, or whether it is with your job or you're looking at something else in your life, whatever you're looking in your life, underneath and beneath all of that is your need to be happy and fulfilled. And that happiness, what I am telling you, is not conditioned by the presence of anything or absence of anything. कोई चीज की जरूरत होने पे, मुझे गाड़ी मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, हाँ गाड़ी मिलती है मैं खुश होता हूँ, नई गाड़ी आए मैं खुश होऊंगा, हर कोई खुश होगा. कुछ पैसा और एक्स्ट्रा मिल गया तो मैं खुश होऊंगा. मगर मैं I can make this choice to be happy now. I don't have to delay it to be some. जब वो मिलेगा तब जाके मैं मुझे खुशी मिलेगी. That's a problem. इसीलिए every day you train your neurons in your brain. Keep happy neurons in your brain. Those neurons that are connecting with each other through happiness. When you make those kind of neurons, healthy neurons in your life, then what will happen is neurons are good, healthy. Means what? Mind is healthy. Mind healthy means क्या हुआ? Mind, world is going to be same thing, happy. Yes. तो जो आपने सोचा है वैसा ही दुनिया आपके सामने खड़ी हो जाएगी. That is all. उसी तरह से अभी कोई आदमी हमको मिलेगा हमारे लाइफ में, ये हमको चैलेंज करेगा. ये तो मैंने बता दिया आपको कि दो ही सीक्रेट है लाइफ में. इसके अलावा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा विचार करने का भी जरूरत नहीं है. जस्ट कीप योर माइंड हेल्दी. हाउ? जैसे पतंजलि बोलते हैं, वितर्क बंधने प्रतिपक्ष भावना. मतलब क्या? थिंक द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग. Most of us feel lazy, lethargic, dull, unsuccessful, failure, lack. Most people feel that in their life and with their relationship with other people. That's what they're feeling. Most of it. Relationship with your own self also, health also. We worry too much about everything. Now the point is, the more we worry about something, the more is going to happen. वो उतना वैसा और होने वाला ही है. क्यों? क्योंकि आपने न्यूरॉन्स वैसे बनाए हैं, और जैसे आपने न्यूरॉन्स बनाए हैं वैसे आपका माइंड होगा, और जैसे आपका माइंड होगा वैसा आपका, क्या बोला था मैंने, वर्ल्ड होगा. आप समझ गए ना? हाउ द ओरिजिन ऑफ थिंग्स आर. ओरिजिन ऑफ थिंग्स आर वर्ल्ड, माइंड, माइंड, थॉट्स, थॉट्स, neurons. Look at how the cycle goes. And who's going to create the neurons?
every day, every night, and every morning, you create within you healthy neurons. Just like how you go exercise करते हैं सुबह, I hope थोड़ा थोड़ा वॉक तो करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी तो कर लिया, बट माइंड में वरी चल रहा है, अरे अभी कितना सब कुछ बेकार हो रहा है लाइफ में, सब कुछ खराब है, काश मेरे साथ ये होता, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती, काश उसने ऐसा नहीं देखा होता मुझे, काश मेरे पास ऐसा। ये जो काश है ना, ये कैश नहीं है, वो काश, वो वाला जो काश है बहुत प्रॉब्लम देगा लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम देगा। इसीलिए आपको चेंज करना है। जैसे माइंड बोलेगा ना आपको, माइंड विल चैलेंज, माइंड विल से नहीं यार, इतना तूने मेरे इतना बुरा बुरा मेरे सोचा है अपने बारे में, ऐसा कैसा तू जल्दी अच्छा सोचेगा अपने बारे में, हाउ विल आई अलाउ यू टू थिंक गुड अबाउट योरसेल्फ। तभी उस टाइम पे माइंड को बोलने का, तू गप्पा बस, यू कीप क्वाइट, डोंट टॉक नॉनसेंस, यू जस्ट शट अप, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू टेल, व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज आई नो दैट as I am training you the mind, as I am telling the mind, now इधर आप कुछ बड़ा साधना नहीं कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, कुछ अद्वैता यूज नहीं कर रहे हैं, कोई टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, all you are telling yourself is that you choose to be happy no matter what. Why is it so difficult? Please experiment with yourself. The next few days, 7 days, चलिए 7 डेज भी छोड़ दीजिए, 3 दिन, चलो 3 दिन भी छोड़ दो, 24 आवर्स, 24 आवर्स ट्राई टू बी हैप्पी। चलो देखो क्या मजा आता है आपको जिंदगी में, कितना मजा आता है। आप प्रण मान लो कि मैं खुश रहूंगा ये 24 घंटा, कुछ भी हो जाए, आप देखेंगे आप खुश होना चाहेंगे ना, आपके आजू बाजू लोग आपको खुशी देख के खुश नहीं होंगे, वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, बट आपको क्या बोलना है कि नहीं, मुझे खुश रहना है, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई मेड माई संकल्प टुडे, ये 24 घंटा मैं तो खुश रहने वाला हूं, आई एम गोइंग टू हैव हेल्दी न्यूरॉन्स, हेल्दी थॉट्स, सब कुछ हेल्दी रहना है मेरे लाइफ में, थॉट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे ही मैं थॉट अच्छा रखूंगा, मेरा वर्ल्ड अच्छा होगा, करेक्ट? सो दिस मोमेंट यू हैव टू फील दैट वे, एंड आई टेल यू वन थिंग, इफ यू डू दिस only for 24 hours, I'm telling you, कल कितना बजे अभी 9 बज गए, कितना 9 तो ऊपर हो गया, 9:50 हो गया, only 10 more minutes left for us, okay, 9:50 तक, 10 बजे हम लोग बंद करेंगे, 10 to next 10 o'clock तक, इस बीच में आप अपने को ऑब्जर्व करो, where are the obstacles coming, कौन आपको ऑब्स्टिकल दे रहा है, कौन बोल रहा है कि आप खुश नहीं रह सकते, कौन आपको चैलेंज कर रहा है, पूछिए, जानिए, ऑब्जर्व कीजिए, इसमें प्रयास नहीं करना है कोई, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, दैट्स ऑल, यू आर ओनली गिविंग योरसेल्फ द टूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डूइंग एनी एफर्ट, यू आर एज्यूमिंग, नाउ लेट मी टेल यू दिस, आई एम पुटिंग इट अगेन very clearly, I am telling you sadhana what to do, very simple thing, you are assuming everything is favorable for you, you are assuming your present situation as it is immensely favorable to you, immensely. Now tell me one thing honestly, when I tell you these words, are you not feeling a shift in your feelings? Tell me, even when I'm just telling you these words, आप सिर्फ सोचिए, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप जिंदगी आपके लिए फेवरेबल है, ये सोचने से आपके अंदर कुछ थोड़ा अलग फीलिंग नहीं आता है, आपको चेंज नहीं आता है, आपको आता है ना? तो आप सोचिए कि ये चीज अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको जिंदगी में कैसा लगेगा, जरा सोचिए। और यही रेडियंस, जैसे आप लोगों के स्माइल में कुछ लोगों की स्माइल देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे देख के, ऐसे ही स्माइल के साथ आप बाद में जाके आपकी नॉर्मल लाइफ हो जाएगा। And when you start to behave like that, the universe is a mirror of your mind. Remember one thing, the universe is a mirror of your mind. Okay? जैसा ही आपका माइंड है वैसा ही वो ही रिफ्लेक्ट करेगा आपका यूनिवर्स, वैसा ही चीज आपको रिफ्लेक्ट करेगा, सेम टू सेम। माइंड डज नॉट नो what is the reality. It does know the difference between what it perceives as a reality and what you tell it to be the reality.
So when you tell the mind, this is the reality, my life is favorable, in spite of it not being favorable, for the time being, it will begin to become favorable. Please understand what I'm saying. In all aspects of your life, I'm not going to separate spirituality from materiality and from your relationships. It's one and the same. The entirety of spirituality envelopes all the aspects of your life, whether it is your health, whether it is your money, whether it is your relationships, whether it is whatever you say, your progress, your ambitions and your dreams and the things that you want to attain and achieve in your life. All of that is spirituality. Please understand that. They cannot be different. How can they be different? The waves in the ocean are the same water. The pot and the mud are the same thing. They are the mud. The shape is different. The form is different, but it's the same thing. The essence of everything that you can know and you know at this moment of time is spirituality. Please understand. So don't make difference between this and that. Like Chetan said, yes, oneness. Everything is absolutely oneness. But are we integrating with that oneness, with the knowledge of, the experience of oneness? Are we bringing that in our life? Somebody says something to us, immediately our oneness goes to, नहीं जाना मांगता है ना, नहीं जाना मांगता. क्यों? क्योंकि वो oneness है ना. तो हम कैसे अपने को समझाएंगे उस टाइम पे कि ये डिस्टॉर्शन है, ये टेम्पररी डिस्टॉर्शन है सब कुछ फेवरेबल. It's favorable. You keep telling yourself in your life, in moment to moment, in between, whenever you remember yourself, आप अपने आप को बोलो ये तो फेवरेबल है, हर चीज फेवरेबल है. तो जैसे आप अपने को बोलोगे ना फेवरेबल, तो अपने को अंदर से एक खुशी आएगी, एक थोड़ी सी अंदर से एक शिफ्ट आएगा, नेगेटिविटी से माइंड पॉजिटिविटी आ जाएगा. और ये बेस्ट थिंग आपको कब करना है, मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि आपका माइंड आपको रेजिस्ट करेगा इस चीज को. व्हाई? बिकॉज यू हैव प्रोग्राम्ड योर माइंड इन सच अ वे दैट नेगेटिविटी पे ज्यादा उसको अच्छा लगता है जाने के लिए ऑल द टाइम. तो इसलिए उस टाइम पे करो जब माइंड पोजेस द लीस्ट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स फॉर यू. दैट इज ड्यूरिंग योर नाइट टाइम. जब आप सो रहे होते हो तो आप प्लीज नेटफ्लिक्स देख के सोओ मत. आप वो हॉरर मूवी देखोगे, आप वो उसका सास बहू का झगड़ा देखोगे या कोई और ड्रामा देखोगे, वही चीज आपका जिंदगी में आपके ड्रीम में जाएगा. मैं सच में बोलता हूँ, वही चीज जाएगा. वो आपको कितने बार अपना हॉरर मूवी देखा होगा, कुछ भी ऐसा क्राइम मूवी देखेगा और वही रात को सपना में वैसा ही आता है ना, ऐसा ही आता है, सेम आएगा ना. सी व्हाट इट मीन्स, वॉट एवर यू फीड टू योर माइंड, वो जाके ड्रीम स्टेट में आपको खिलाएगा वापस. ये ले तू खा इसको, है ना. तो इसीलिए whatever you feed your mind is very important. Just like how you feed your body determines your quality of your health. Whatever thoughts you feed your mind determines your existence, the quality of your existence. It's a very simple thing. It's a very scientific thing. So at night, जब आप सो रहे हो तब अपने आप को ना जैसे लेटे हो आप बढ़िया से, बड़े आराम से आप अपने आप को ना, I love myself. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है हमारी क्या है? हम अपने आप से नहीं प्यार करते. हम चाहते हैं दूसरा प्यार करे हमसे. अरे भैया, तो पहले खुद को तो प्यार कर लो अपने आप से, तो दूसरा प्यार करेगा. खुद में क्वालिटीज अब खुद नहीं दिखती हैं और दूसरों को बोल रहे हो दूसरे देखें, कैसे होगा? तो पहली चीज, प्लीज टेल योरसेल्फ दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स. किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बोलो. और बहुत इजी आएगा एक्चुअली. अपने आप को बोलो, आई लव माई सेल्फ. 3-4 बार बोल दो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई फुली एक्सेप्ट माई सेल्फ. होता क्या है, हम लोग पुराने थॉट में जाते हैं ना, उसको मेरे को ऐसा बोला, मेरे बहू के साथ ऐसा हुआ, मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, मेरे कॉलेज में ऐसा हुआ, मेरा, आई एम गिविंग एग्जांपल बिकॉज़ मेनी पीपल आर हियर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सो आई डोंट नो हु इज हु, यू नो. तो कोई कॉलेज में जा रहा है, कोई काम में जा रहा है, कलीग को कुछ ऐसा बोला, बॉस को ऐसे बोला. दैट गेट्स प्लेड एट नाइट, सोते वक्त सबकॉन्शियस माइंड में वो टेप रिकॉर्डर की तरह घूमता है और उस टाइम पे वो हम प्ले करते हैं. और वो जैसे प्ले होता है तो हमारे उसके तरह से इमोशंस और फीलिंग्स आते हैं. दैट विल डिफाइन योर नेक्स्ट डे. बेसिकली जो रात को आप सो के जिस स्टेट में सोते हो वो आपका कल डिसाइड करेगा, परसों डिसाइड करेगा, तरसों डिसाइड करेगा
और अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल तक डिसाइड करने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। Unless until you change that. So are you willing to change? Yes, that's the spirit. So when you're willing to change, you tell yourself every day, every night, just as you're sleeping, I love myself. कोई प्यार करे नहीं करे, अरे भाड़ में जाए, किसी का प्यार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम अपने को ही बहुत संतुष्ट हैं, हम अपने पे ही बहुत अच्छा है, मजा में हम लोग एकदम, अरे हम अपने आप को प्यार करेंगे, बहुत बड़ी चीज है। हमने अपने आप का साथ नहीं छोड़ा ना, तो कोई चीज की परवाह नहीं है। हमारा रब हमारे अंदर है, हमारा भगवान हमारे अंदर, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं है। सच में बता रहा हूँ, जिस दिन ये आपको पूरी सर्टिफिकेट आ गई ना, आपके अंदर सर्टिट्यूड आ गया, पूरी आपके अंदर ये कन्विक्शन आ गया कि आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, किसी की भी, तो आप बहुत बेहतर जिंदगी रह पाओगे। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत चेंज होगी, आपकी थिंकिंग चेंज होगी, आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपके वाइब्रेशन लेवल चेंज हो जाएंगे लोगों के साथ। नंबर 1, तो आप पहले अपने आप को, मैं तो बोलूं सबसे बढ़िया मंत्र यही है। कोई मंत्र मत करो, ये करो, आई लव माई सेल्फ, सबसे बड़ी चीज, सबसे बढ़िया मंत्र है एक। दूसरा, आप रात को ये सोच के बोलिए अपने आप को, बोलो माई ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब लाइफ, यूनिवर्स, जो भी चीज है ब्राह्मण बोलते हैं हम लोग, ब्राह्मण इज एवर फेवरेबल, मतलब हर चीज मेरे लिए, मेरी जिंदगी में फेवरेबल है, सब कुछ, सब कुछ। अभी वो बोलेंगे नहीं इसमें ये फेवरेबल अनफेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, नहीं उसको मत सुनो, आपसे ये बोलो, अपने आप को यही बोलो, कोई नेगेटिव थॉट नहीं करने का। एवरीथिंग इज इमेंसली फेवरेबल फॉर मी, आई लव माई सेल्फ, everything is immensely favorable for myself, I am at peace with everyone, everyone is at peace with me। ये 3 चीज आप अपने आप को हमेशा रात के समय बोलिए, सोने से पहले। उसके बाद आपको जो आपके जो साधना करना है कीजिए, आपको मंत्र करना है करो, आपको जो भी करना है, आपको और भी कुछ करना है, जो भी करना है आप करो। सोने के टाइम पे आप ये करके सो जाओ, फिर आप देखो आपको एक अलग डायमेंशन आपका माइंड का समझ में आएगा। जब आप देखोगे कि द वे यू हैव थॉट इज एक्चुअली बिगिनिंग टू हैपन इन योर लाइफ। आपके बहुत लोगों का ऐसा होता है कि थोड़ा 5 मिनट और बात करूंगा, आई नो आई हैव स्पोकन अ लॉट बट 5 मिनट्स मोर आई विल टेक, दैट्स इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग की एनर्जी, और सो ये मैं बोलूंगा कि बहुत लोगों का ना, जैसे बेटी mother relationship, parents and daughter and parents and son, बच्चों का अपने साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी रहता है बहुत लोग, हम लोग अपने आप हम इम्पोज कर जाते हैं उन पे, ऐसा होना चाहिए मेरा बच्चा, ऐसा होना चाहिए मेरा बेटा, ऐसा होना चाहिए मेरी बेटी, ऐसा होना चाहिए मेरी बहू, ऐसा होना चाहिए था वो, ऐसा होना, तो हम अपने आप पे ऐसा होना चाहिए था बोलते हैं। ये होना चाहिए नहीं है, ये है, ऐसा बोलो, हमेशा बोलो कि वो है, ऑलरेडी है। हम डिले क्यों करते हैं हमारी खुशी? वो होगा तो जाके मैं खुश होऊंगी। अरे अभी बोलो कि मेरी बेटी बहुत है अच्छी, मेरी बहू बहुत अच्छी, मेरा पति बहुत अच्छा। वो है नहीं है वो बाद में जाने दो ना, अभी तो अच्छा फील करो। वो क्या है, होगा हो जाएगा, वो होगा नहीं होगा नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है अपने आप को बोलने का। सच में बोलता हूं मैं अपने आप को, यू टेल योरसेल्फ, आई एम नॉट जोकिंग, यू थिंक लाइक दिस। See, the moment you start thinking like this, ना, your vibration level changes. दूसरा आदमी क्या सोचता है कि हम लोग, अरे इसने तो ऑलरेडी मुझे नालायक बोल दिया है, ऐसे मैं, ये तो बोलती है, ऐसे बोलती ही है, मेरे बारे में ऐसे सोचती ही है, वो भी समझता है आदमी। दूसरा आपके बेटा बच्चा, हस्बैंड वाइफ, वो भी समझता है कि ये तो ऐसा सोचती है मेरे को कि मैं तो ना एकदम यूजलेस है, ऐसा है वैसा है, तो मैं ऐसे ही रहेगा, फिर मैं तो ऐसे ही है ना। बट द मोमेंट यू शिफ्ट, यू थिंकिंग अबाउट अ पर्सन, the person starts to grasp something more subtly about yourself. He starts to grasp hope. He starts to think, नहीं, मेरी माँ, मेरी बेटा, मेरा बच्चा, मेरी वाइफ मेरे बारे में अच्छा सोचती है, मेरे बारे में विचार अच्छे हैं उसके, तो ना they also start to radiate that kind of frequency like the way you start thinking. तो हमेशा जिंदगी में यही रखिए। सेम थिंग गोज विद मनी। बहुत लोगों को मनी की प्रॉब्लम होती है, मेरी पैसे प्रॉब्लम है। जो लोगों के मनी की प्रॉब्लम होती है ना, वो हमेशा मनी की प्रॉब्लम में रहते हैं, आप देखना, हमेशा उनकी स्टोरी है, 20 साल से उसको प्रॉब्लम है। और जिसको प्रॉब्लम नहीं होती ना, जिसको आदमी बोलता है ना उसका पैसा नहीं होगा जेब में, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा उसके। आप देखो अपनी लाइफ में बहुत लोग होते हैं, वो ऐसा उनको कॉन्फिडेंस रहता है, अरे मनी विल कम यार, डोंट वरी, वो आ ही जाएगा कहीं से।
How? It's the thoughts. It's a way that he has thought he's brought the future into his present experience, and he has lived that experience. He's living that experience of not in lack, but in total abundance with things. Same thing you should do with your life. Same thing you do with your relationships. Same thing you do with your work. With every aspect of your life, of course, there are intricacies involved, with everything. हर एक का अलग अलग सिचुएशन है. मैं तो एक ब्रॉड में बात कर रहा हूँ. I'm talking from a very broad sense of thing. हर आदमी का अपने अंदर complications of the mind होते हैं कि वो क्या एक्सपीरियंस से गया है, किस तरह से होता है. तो उसके लिए हम अलग प्रोसेस फिर धीरे धीरे करके उसको रिलीज कैसे करना है, ओल्ड ऑब्स्टिकल्स कैसे रिलीज करना है. बट मोटा मोटे अगर हम लोग ये चीज समझ लेंगे कि खुशी मुझे डिले नहीं करनी है, खुशी मुझे अभी है. नंबर 1, मैं अभी चाह रहा हूं, डिले नहीं करना है. दैट्स स्पिरिचुअलिटी. रिमेंबर, नॉट डिलेइंग योर सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस इनटू अ फ्यूचर इवेंट और फॉर अ फ्यूचर एपिसोड or a future event to take place is spirituality. Realizing the essence of spiritual happiness in every moment of your life is spirituality, which means I must be happy now, not in the future. If you delay your future, your happiness for the future is never going to come. I tell you that. It always has to be now. In this moment, you have to decide to yourself, and the mantra that I always tell about it, हैप्पीनेस तो बहुत वेग आंसर हो गया. आई विल बी हैप्पी नहीं बोलने का. मेरा जिंदगी में मेरे लिए सब फेवरेबल होता है. बिकॉज आदमी को ना, हम लोग सब लोग सेल्फिश है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अंदर अंदर से सब लोग सेल्फिश ही हैं. और सेल्फिश का मतलब क्या है कि मुझे हर चीज फेवरेबल चाहिए. टू बी ऑनेस्ट, देखो हम तो सीधा बोलते हैं लाइफ में, आई वॉन्ट ऑल माई सिचुएशंस टू बी वेरी फेवरेबल फॉर मी. सिंपल. सो यू टेल योर माइंड सेम थिंग कि हर चीज मेरे लिए फेवरेबल है, ऑलरेडी है, और इट विल मेक श्योर दैट थिंग्स विल बिकम फेवरेबल फॉर यू. आप 24 घंटा ट्राई कीजिए एंड यू टेल मी हाउ यू फील, और यू टेल कश्मीरा हु इज गोइंग टू बी हियर, आपके वो कोऑर्डिनेट कर रही है, डलना है, वो है, तो आप उनको अपना फीडबैक देना कभी भी. ये आप ट्राई करो. 24 आवर्स का मतलब ये नहीं कि अगले दिन क्या अब तो मैं नेगेटिव हो सकती हूँ, 24 घंटा कर लिया, नहीं. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कंटिन्यू करो. बट 24 आवर्स का आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या होता है आपके अंदर. जब आप आपको ये बोलते हो कि आई एम एवर लव्ड, आई एम एवर लव्ड एंड एवर लव एंड आई लव माई सेल्फ, और जब आप बोलते हो अपने आप को कि आई एवरीथिंग इन लाइफ फॉर ब्राह्मण इज फेवरेबल, तो आपको क्या फीलिंग आता है, आपको क्या एक्सपीरियंस आता है, आपके अंदर क्या होता है, वो सब नोट करो. और आगे से क्या हो रहा है, आगे से यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है, वो आप नोट करो और देखिए, और मुझे हमें बताइए, हमें फीडबैक दीजिए उस चीज का. ठीक है. इज देयर एनीबॉडी हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन और वांट टू शेयर समथिंग बिफोर आई लीव एंड टेक योर लीव? प्लीज रेज योर हैंड्स और just Kashmira, just see if there's anything. Yes, a small guided meditation. Oh, अभी थोड़ा टाइम, I want to clear, I would take it, I promise I would have taken a meditation, but वो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसको करने के लिए. बट आई वाज थिंकिंग कि मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूं. मैं एक और कॉल ले लूंगा बीच में कभी भी, आफ्टर सम टाइम वी विल कर लेंगे, एक और अरेंजमेंट कर लेंगे हम लोग इस चीज का. लेकिन किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या, ये इंपॉर्टेंट, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? दैट इज माई मोर इम्पोर्टेंट थिंग. तो Kashmira, just see if there's anybody who wants to ask a question. If anyone has a question, you all can just raise your hands, virtual or real. Thank you. Thank you, Dubas ji. Thank you for your very beautiful words that he has said. Yes. Thank you, Vivek bhai. Thank you. Yes, positivity. देखिए, positive thought जो होता है ना, उसमें difference है. ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये affirmations हैं, truth का है. Truth के affirmations हैं. Positive thinking में क्या होता है? अरे यार वो Sorry, I have muted you by mistake. तुम बहुत मिस्टेक करती हो Kashmira. यार तुम ये ऐसे मिस्टेक करते रहोगे तो एक तो लेट आती हो, ऊपर से मिस्टेक करती हो. सही. Very sorry, very sorry. It's okay, it's okay. I'm just joking. Okay, someone. All is favorable. Okay, अंजलि जी रिमाइंड करा रही है मेरे को, गुरु को भी याद करा देगा. देखो आप ऐसा मत सोचो अनफेवरेबल है. ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अपने मन में रखो अंजलि जी इसको, फेवरेबलनेस को. हाँ. ठीक है.
सो अभी क्या है कि जैसे हम लोग में ये जो किसी ने पूछा है, ओके देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग हियर. बेनाज जी, थैंक यू वेरी मच बेनाज, रियली नाइस टॉकिंग टू यू and listening to you make me feel very there's a lot of things that has come. Why okay, oh 1 minute, it's going very fast. थैंक यू के तो बहुत आगे. थैंक यू वेरी मच, मुझे भी अच्छा लग रहा है. ग्रेटिट्यूड ब्रिंग्स अबाउट थॉट ऑफ favorableness. Very nice. Utokshi has written a very nice thing. She says gratitude brings about thought of favorableness. Really correct. Gratitude हमें अपने हमारे जीवन के साथ gratitude होना चाहिए, और gratitude को हमारे प्रेजेंट लाइफ में और लाइए. पॉजिटिवली हमको रीइंफोर्स करना है ये चीज कि मेरे साथ फेवरेबल हर चीज में होना है. सपोजिंग आपके कोई एस्पेक्ट है लाइफ में, एक एग्जांपल देता हूं कि कोई भी चीज में आपको लग रहा है कि फेवरेबल नहीं है, लाइफ में ऐसा प्रेजेंट करता है. हेल्थ का कभी डर लगता है, फियर हो गया, कोरोना तो नहीं हो जाएगा कहीं सपोजिंग, तो वो अनफेवरेबलनेस का फीलिंग आता है. उस टाइम पे आपको क्या करना है? सेम थिंग आपको. बी अढाई लगे सुम्या है, निंड ही न पई अचे, फटी वई निंड. ओके, somebody is talking in the middle. ठीक है, कोई बात नहीं, होता है. So let's just mute everybody. Yeah, आप म्यूट कर दो. Okay, I've muted. Yeah. So at that moment of time, you make a conscious effort, or rather a conscious understanding, and bring your awareness consciously to that aspect of your life, to that very aspect of your life which is troubling you. Remark my words out, I'm telling. To that very aspect of your life. It could be the person, it could be an event, it could be anything. Anything that is at the moment creating any kind of agitation in you, slightest agitation or doubt in your life. And at that moment of time, you imagine that all of that is extremely favorable for you. Now, it may be that the mind will say, nahi, 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 yaar, resistance karega. But you tell it more forcefully to yourself. कभी कभी आपको जोर से भी बोलना पड़ेगा अपने आप को. रूम बंद कर दीजिए और बोलिए ये बहुत फेवरेबल है. मतलब वो अनफेवरेबल नहीं, वो चीज जो है ये फेवरेबल है, मेरे लिए फेवरेबल है. आप अपने आप को सिर्फ ये बोल दीजिए बस. दैट्स ऑल यू हैव टू डू देयर. आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. वेरी नाइस, very nice. Gratitude brings about thought. Okay, that's nice. What is the resistance to living now? And why is there a very nice question by Nishant? Why is the resistance to living in the now an attraction towards negativity? See, they say whatever you sow is what you will reap. It's a very simple. That's a karmic law. अभी आप क्या कहते हैं उसको, ऑरेंजेस के झाड़ के सीड्स डालोगे तो आम तो नहीं आएंगे, वही आएंगे, ऑरेंजेस ही आएंगे, है ना, लेमन्स ही आएंगे. सो सिमिलरली द रेजिस्टेंस इज कमिंग फ्रॉम अ पैटर्न ऑफ योर ओन थॉट. द बिलीव्स दैट यू हैव हेल्ड ऑल दिस टाइम acts in your memory. It gets stored into your subconscious memory, and that acts as a very strong pattern of your behaviors that are reinforced. Okay, again and again that gets replicated. मतलब बार बार वही चीज आती है. और इसीलिए हमको, जब हम अपने आप पहली चीज हमको अवेयर होना चाहिए कि ये नेगेटिव हम सोच रहे हैं, हमारा माइंड नेगेटिविटी जाता है, नॉर्मल है. उसके लिए मतलब ये एक नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ द माइंड है कि वो हमेशा ही नेगेटिविटी की तरह शूट करती है, हमेशा. तो उसी टाइम पे जैसे ही लगे कि नेगेटिविटी में जा रहा है, तो पतंजलि को याद करो, वितर्क बंधने प्रतिपक्ष भावना, यानी ऑपोजिट सोचो. जैसे ही आए उसको ऑपोजिट सोचो. जैसे लगे मेरा फियर ऑफ हेल्थ है, मेरा हेल्थ खराब हो जाएगा, तो सोचो नहीं, आई एम वेरी फेवरेबल विथ माई हेल्थ, आई फील ग्रेट. इमेजिन योरसेल्फ टू फील ग्रेट. इमेजिन योरसेल्फ टू फील वेरी गुड इन योर हेल्थ. सोचिए आप बाइसाइकिल चला रहे हो, सोच लिए कि आप रनिंग, थोड़ा सा जॉगिंग कर रहे हो, भले आप कर नहीं रहे हो, लेकिन आप अपने अंदर उसको इनैक्ट कर रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो. The moment you visualize that, it's as good as it is happening. The reason is you start feeling good. That's the whole point. You're only visualizing it makes you feel good. आपको आगे देखने का जरूरत नहीं. जब मैं भागूंगी, जब मेरा बाइसाइकिल भागूंगी या रनिंग करूंगी, तब जाके मैं खुश होंगी. अरे why delay it? अभी कैसा लग रहा है मुझे? बहुत अच्छा लग रहा है. Fantastic. The moment you tell that to your mind,
your rewiring of your brain patterns of your brain cells take place. There's a pathway that is developed in your brain. A new pathway is developed which says you are healthy, right? Same thing with your relationships, same thing with your money, relationship with your money, same thing with anything in your life. And that's when, you know, people say that मुझे कोई बोलते तो इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है लाइफ में, सब कुछ तो खराब है जिंदगी में, इतना कुछ तो है, तुम बाहर नहीं गए, तुम अभी 1.5 साल हो गए हो एक ही जगह हो, यू नो, अभी मैं मुश्किल से बॉम्बे गया अभी बीच में, उससे पहले तो मैं कहीं जा नहीं पाया, अदरवाइज आई हैव ऑलवेज बीन, यू नो, टूरिंग प्लेसेस, गोइंग टू द समवेयर इन यूरोप, कभी यूएस गए, अभी 1.5-2 साल हो गए कोरोना की वजह से कहीं नहीं है, लेकिन तुम खुश कैसा है इतना? क्योंकि मैं तो रोज फ्लाइट लेता है ना अमेरिका के लिए, मैं तो रोज जाता हूँ, उसका थोड़े ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको तो बिना टिकट के जाता हूँ मैं तो, I go there every time. I always think that I am taking that, I'm going there. उसके लिए किसका रोक है उसमें तो I already feel good in my thing. So I always feel very positive about everything, you know. And that's where things begin to change in your life. When you start thinking that way in your life, you start to feel happy in your life. फिर तो कोई भी सिचुएशन होने दो, आप नेगेटिविटी की तरफ आपका माइंड जा ही नहीं सकता. You can then say that there is resistance towards negativity. फिर तो किसी ना किसी को मुझे ऐसी चीज बोलनी पड़ेगी जिसको मुझे अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा नेगेटिव सोचने के लिए, otherwise it's very difficult to think negative. That's how you start to change in your life. That's how your entire life becomes like this, and it radiates to the people in your life. आपके घर में, आपके जितने भी ऑफिसेज में है, वहां पे भी लोगों को फर्क पता चल जाता है. So listening to make me feel very positive. Thank you very much, Umesh Mani Nagarwala ji. What if you are done? What if you have positive affirmations but don't feel them? Will they work? Good question by Kiran ji. They, you know, initially you will not feel the truth. Initially you will feel like it's not kind of genuine. It's not authentic because you don't feel that, right? You don't feel that. But the fact of the matter is, let's look at Vedanta. What does Vedanta say? That the entire thing about Brahman is like Ananda. हम सब blissful हैं. जितने भी आप religious books भी पढ़ लीजिए, या कोई भी scriptures पढ़ लीजिए, या कोई भी spiritual science पढ़ लीजिए, उसमें एक ही चीज बोलते हैं कि आप आनंद हो, आप joy हो, आप unlimited, uninterrupted bliss हो, ये हो. तो अब reality क्या है? Reality तो वो है ना, that is the reality. You have hypnotized yourself to think otherwise. Now you have to de-hypnotize yourself to think the reality. It is because of the influence of the world that you have started to believe that things are bad for you, ugly for you, unfavorable for you, and that's why you're unsuccessful. But when you start doing and telling yourself that no, everything in Brahman is favorable for me, everything in life is favorable, all the people who come in my life are also favorable for me, even though at times they may appear to be unfavorable, which is just a distortion. The moment you tell these two things to yourself, the mind silences itself and you go into the feeling. So when you practice it with time, these positive affirmations which I'm telling you, only 2 of them are there, only 2. Brahman is forever favorable. And second thing is, if they are unfavorable, remember it is only a temporary distortion and move into the state of favorableness. Okay, with that. So ये आपने 2 चीजें कर ली ना, तो आपको फीलिंग भी आने शुरू हो जाएगी. भले थोड़ा टाइम जाएगा, immediately नहीं होगा, because patterns are very strong in all of us. We are very good to create trouble out of nowhere. We love to create problems for ourselves. नहीं मिलेगा प्रॉब्लम तो खरीद के लेके आएंगे, हम तो इतने अच्छे हैं उसमें, तो हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको. बट जिस दिन हम लोग उस चीज को समझ जाएंगे कि ये कितनी अच्छी चीज हो रही है हमारे जीवन में, हम ये सब नेगेटिव पैटर्न्स और टॉक्सिक बिहेवियर्स बंद कर देंगे लोगों के साथ. ओके, और अपने साथ. सबसे बड़ी बात, हाउ टू कंट्रोल व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ रेज. हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये तो बहुत एक, उसके लिए तो अलग सत्संग लगेगा, अभी लेट हो जाएंगे. लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया, रेज क्यों होता है? बिकॉज योर बॉडी टेक्स ओवर. यू सी, whenever you are
in a state of negativity, ये एक दिन से नहीं होता नेगेटिव, एक पैटर्न होते हैं नेगेटिव थॉट्स के. जब नेगेटिव थॉट्स बहुत बढ़ जाते हैं तब हमें को एंजाइटी होने लग जाती है. ओके, एंशियसनेस, पैनिक अटैक्स होते हैं. जब हमको ये नेगेटिव चीजें शुरू हो जाती हैं, फिर हमको कोई अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है तो हमारे अंदर वो एक रेज शुरू हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ केमिकल डिस्चार्ज इन आवर बॉडी बिकॉज ऑफ दैट, व्हिच इज कॉल्ड एज सर्वाइवल. We start thinking threat. We start to assume there is a threat for in my life for with somebody. Rage कब आता है? जब threat होता है. अभी किसी ने हमको किसी तरह से थोड़ा देख भी लिया गलत तरीके से तो भी रेज आ जाता है, या किसी ने कोई शब्द बोल दिया जो हमको अच्छा नहीं लगा तब भी रेज आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंड एट विच हाउ नेगेटिव ओरिएंटेड you have been and how you've been feeling. Okay, so for that also I'm saying the same thing. Follow these two laws that are there. Brahman is forever favorable, and if it is unfavorable, then know it's only temporary distortion, and move into favorableness again. Now start feeling it. Start feeling it in your life, in your body, that there is favorableness happening with you, even though it may not at this moment happen. But you should always assume it is happening. When you start doing this, then you will immediately, then those chemicals that are basically released by the brain, they will become to subside, they'll become to dissolve. ये chemicals इसलिए आते हैं हमारे पास, release होते हैं because of a threat that we imagine, and the moment the threat is gone, that's it. फिर rage नहीं आएगा आपको, समझ गए? तो इसीलिए ये चीज आपको याद रखना है कि आप हमेशा उस चीज को कंट्रोल करो. और बाकी थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड. I had to ask you one question. Yes, on the same line. I'm a health coach and a yoga instructor. So Very when nice. you have this chemical imbalance and you're dealing with people who are in depression, where they have, very depressive thoughts, how do you get them to even do? Because they are not even Yes. aware that it's happening with them. One, you're trying to get them out of a situation where they are depressive, and Yes. They don't even want to open the blinds or have the sunlight come in, and sometimes they're just so depressed. Okay. How do I we got deal it. with that Okay. situation? So very good question again. I know why you're saying this, because you're in the path. You have been in the path of yoga, so you must have come across people who are like that. And now you see the depression is a very again, it's a spectrum, right? Now there could be Yes. people who could need medication, who are Yes. who are having anxiety attacks or panic attacks. For those people, I think medical medicine could help. Right. But so we can't advise them to okay आप medicines मत लो, वो तो जिनको लेना है उनको लेना है. लेकिन Right. सबसे बड़ी चीज, जब आप योगा सिखा रहे हैं कोई भी चीज, सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि सबसे पहली चीज, कोई भी अगर डिप्रेशन में या सैडनेस में है, let them feel it. Let them feel it. Allow them to process their feelings. Allow them to feel it. Because अभी क्या होता है, पहले उन्होंने बहुत कुछ सप्रेस कर लिया है उनके अंदर. Okay. Now they don't even know how, they're not even aware that ये फीलिंग कैसी होती है. बहुत लोग तो डर जाएंगे फील करते करते उसको, because it feels like a dark black hole to go into. So what I would suggest is sit with them, do a session with them, tell them to go through the emotions one by one. What do you feel in the body? Make it like a physical problem for them rather than mental problem. Because physical problem में लोगों को इतनी कंप्लेन नहीं होती. जैसे मुझे हेडेक हो गई, अगर कभी आपको हेडेक हो गया तो हमको इतना प्रॉब्लम नहीं लगता है. लेकिन जब वरी होता है ना, जो बार बार वरी होती है कोई चीज को, जो हमारा दिमाग एक ही चीज को बार बार like it's stuck to a tape, like a tape, it keeps playing the same thing over and over again on a loop. That's a problem. The first important thing is get them out of their heads and get them to feel the feelings, which I call sensate the sensations in the body. Let them sensate it fully. Allow them to feel the pain that is there in your body, holding them close to you. उनके साथ आप बैठो, उनको बोलो आप बिल्कुल सेफ हो. They don't feel safe with anything. That's why they're in depression. So make them feel that you're absolutely fine. I'm here to help you. Everything is great. Now I want you to take them. Before you tell them, oh, be positive, they will never be positive. They will never think in that direction, because that's not the reality.
But for that to happen, for them to go into a positive state of mind, they first need to release those blocks that they have created within themselves, those energy blocks that they have created within themselves. And for that, they have to start releasing that form of energy, negative toxic energy. For that, they have to sit and they have to process it. You have to be with them. You have to make them breathe. Often they are not even breathing properly. So you just have to make them feel, जैसे ब्रीदिंग ले रहे हो आप, तो ठीक है, आप ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए. अब वो आप एक्सेल करते हो तो कैसा फील हो रहा है आपको? You know, let them, and then whatever is arising in their life, in their heart, कहाँ contraction हो रहा है उनके लाइफ में? Is there contraction happening in the throat area? Is it happening in the gut? Is it happening in the heart? कहाँ हो रहा है उनको ये सब? उनको एक एक चीज को उनको डिस्क्राइब करने दो. Let them go through the entire process of telling you that, you know, this is what I'm feeling. ये चीजें मुझे फील हो रही हैं, तो जाके रिलीज होगा. फिर आप ये दूसरा काम कर पाएंगे. और उसमें शायद किसी लोगों को मेडिकेशन की जरूरत पड़े तो कोई बात नहीं, ले लेना चाहिए, उसमें क्या है. किसी लोगों को सोने नींद नहीं आती है तो ले लो ये थोड़ा टाइम के लिए मेडिकेशन, क्या फर्क पड़ता है, बॉडी के लिए तो है, कुछ नहीं होता है. You see? Yeah. Lots of suicides and lots of divorce cases, you know, in the US. So it's such a big problem. Yes. Right now, especially with the COVID, the thing what you spoke about today. I mean, I do that on a personal thing about affirmations, and always tell myself, you know, everything is working out for me, even when it seems like it's not. It's always working out. That's true. That's true. That's how you basically, change your pathways from the negative to the positive pathways. You make healthy neurons in your body, healthy connections in your body, in your brain, and that's what happens. Then you can manifest the life that you want, manifest the reality that you. So if you're a yoga teacher, you can manifest beautiful things for yourself and for other people. है ना? तो इस तरह से आपको जिंदगी में करना है. Of course, बहुत challenges हैं अभी, definitely अमेरिका में और हर जगह है. तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नम्रता जी. Thank you very much for that. For the question was very nice. Thanks, some gratitude to Kashmira and Delna for attending your talk. We'll do homework and let you know. Thank you. Okay, great. Usha and Ruby, thank you very much. Anyway, my thinking is सदा दिवाली संत की आथो प्रहार आनंद, सदा दिवाली संत की अथो प्रहार आनंद. अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात है. Very nice. Thank you very much for your valuable guidance for acquiring a better and happy life. Very nice. Deep respect to all of you, sir. You explained loving yourself every day is really helpful in this situation. Absolutely love yourself. You don't need anybody to love yourself. अगर कोई मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, याद रखना. Okay, you're enough. Thank you for a wonderful session. How to imbibe these laws in practical life. Example, professional situations. You will meet challenges. Challenges are the way for you to go ahead. Challenges नहीं होंगे तो आप grow करना बंद कर दोगे. So don't get worried about challenges. Challenges को एकदम हंस के लेके बोलना है कि ये तो favorable ही है मेरे लिए, एकदम मैं तो मस्त होने वाला ही है, इसमें बढ़िया होता है. कभी कभी ऐसा होता है मेरे लाइफ में. सॉरी, कोई है? somebody is there, I think. Yeah, anyway, कभी कभी ऐसा होता है मेरे लाइफ में कि मुझे बहुत चैलेंज आता है कोई चीज का. If there is a challenge in my life, I feel more excited about myself. कि अरे मजा आ गया आज तो, मेरा माइंड आज थोड़ा सा थिंकिंग कुछ अलग सोच रहा है, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया. सपोजिंग आई फील सैडनेस एंड ग्रीफ. सैडनेस में कोई खराब नहीं है, यू कैन फील, यूर ह्यूमन बीइंग. सैडनेस होगा, क्यों नहीं होगा, बट उस सैडनेस में भी, उस ग्रीफ में भी बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है. यही तो है कि उसमें भी बहुत फेवरेबलनेस लगता है. ये सैडनेस भी हम ले लेंगे, बहुत मजा आ रहा है इसको लेके. हमारी तो पूरा बॉडी के सेल्स रेडिएट होते हैं और आनंद में घूमते हैं. जब कभी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज हम सुन भी लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है इट इज अ पासिंग क्लाउड. ये तो पासिंग है ना, थोड़ी ना हमेशा रहेगा. सन तो हमेशा ही रहेगा, हमेशा ही हमको उजाला देने के लिए है. तो क्या है, उसी को देखो बस. ट्रुथ का मतलब यह है, ब्रह्मन को देखो, बाकी कुछ मत देखो. अपीयरेंस को मत देखो, अपीयरेंस तो आएगा जाएगा. द रियलिटी इज बियॉन्ड द अपीयरेंस, बियॉन्ड द ड्युअलिटी ऑफ लाइफ. सुख दुख के आगे क्या है? फेवरेबलनेस है. बस यही बोलने का कि हर चीज फेवरेबलनेस है, बस उतने में. कैन सच पॉजिटिव थॉट्स बी ट्रांसमिटेड टू अनदर पर्सन? बिल्कुल, पहले खुद को कर लो, पहले खुद को कर लीजिए, और उसके बाद वंस यू डू इट टू योरसेल्फ, it can not only be transmitted, it will be having a ripple effect to everybody in the family,
सबसे बड़ी चीज आती है जब आपके फैमिली मेंबर आपकी तारीफ करने लग जाए, मान लो बात। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा सुख भी वही है। देखो, आपको लाता पोती करने के लिए बाहर के लोग मिल जाएंगे, जो कि आपको कभी कभी मिलते हैं, क्योंकि आपको तो अच्छा ही बोलना है ना उनको, और वो भी आपको अच्छा ही बोलेंगे, तो आप तो उनके सामने तो अच्छा ही रहोगे। लेकिन जब ऑफिस में आपको कोई बोले, या आपके काम में कोई बोले, जो आपको रोज देखते हैं, या आपके घर में कोई बोले कि अरे आप में तो बहुत अच्छा, थोड़ा चेंज आ रहा है आप में, अच्छा, ज्यादा तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन समझ लेना ये तो बहुत बड़ा डिग्री मिल गया आपको, अगर ऐसा हो गया तो लाइफ में। बस उसका एम करने का, बाकी कुछ नहीं। और कितना, थैंक यू डॉक्टर डेलना एंड कश्मीरा, वेरी नाइस, थैंक यू। इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन, की पॉजिटिव थॉट्स, वेरी गुड, करेक्ट। यू गेव द टॉपिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आई करण जी बोल रही हैं, करण जी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हाँ जी, मैं ट्राई करता हूँ कि वो पर्सपेक्टिव सबको समझ में आए, और जो समझ में आता है वही आई फील इज बेटर टू टॉक, और फिर बाद में और चीज़ों का डीप में जाने का, जैसे नम्रता जी ने क्वेश्चन पूछा, तो हम थोड़ा डीप जाते हैं कि भी हाँ, अलाउंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर फीलिंग। आप जो भी फीलिंग है उसको आप प्रॉपरली प्रोसेस करने के लिए अलाउंस सीखिए पहले। जैसे हम बोलते हैं हम आई लव माई सेल्फ, तो आपके अंदर जो भी भाव है, जैसे नेगेटिव फीलिंग्स भी आती हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट अलाउ कर दीजिए, लेट देम सरफेस फुल्ली, डरिए मत, आने दीजिए उसको, घबराइए नहीं कोई भी चीज से। और जैसे ही वो आए तो आप देख लीजिए, और इमीडिएटली फिर उसको एनर्जी को थोड़ा चेंज कर लीजिए कि हाँ, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं तो हर चीज में बहुत अच्छा सोचती हूँ, मैं तो हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही सोचती हूँ, ऐसे सोचिए। और सब मेरे बारे में भी ऐसा सोचते हैं, ये भी सोचिए। ये नहीं कि मैं अच्छा सोचती हूँ और सब लोग मेरे लिए बुरा सोचते हैं, वो तो हर कोई सोचता है ऐसे, ऐसे नहीं। पार्शियल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर एक के लिए भी, हर कोई भी आपके लिए अच्छा सोचता है, ऐसे सोचने का। थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, थैंक यू, प्लीज राइट बोथ इन द रूल्स इन द ग्रुप ऑल्सो। चलो, ये आपको कश्मीर और डेलना भेज देंगे। क्या है गुरुजी, हाउ कैन यू कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम यू, प्लीज नेट यू टू हाउ टू। हाँ, वो भी शिल्पा जी आपको कश्मीर और डेलना बता देंगे क्या है, कैसा करना है। वेयर कैन यू गेट द हार्ड कॉपी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ज्ञानी। हार्ड कॉपी तो है मेरे पास, वो भी है, मैं भिजवा दूंगा। नहीं, अभी डेलना आएंगी, कश्मीर आएंगी, तब हाउ टू ज्वाइन योर कोर्स इन फ्यूचर, वो भी आपको इन दोनों से मिल जाएगा। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल मैसेजेस दैट हैव कम फ्रॉम यू। आई होप there is going to be a tremendous, no, not going to be, sorry, there is a tremendous favorable change in you already and in the situation that is around you. Okay, तो मैं यही प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये ऑलरेडी हो रहा है। ओके, और आप भी यही प्रार्थना करो कि हो रहा है। बस कोई डिफिकल्टी नहीं है लाइफ में, समझ लीजिए डिफिकल्टी अपीयरेंस है। वो वेदांता में एक बहुत अच्छा एनालॉजी दिया है, रोप एंड अ स्नेक, सबने सुना होगा, बहुत फेमस है, कि इट ओनली अपीयर्स लाइक अ स्नेक, द वर्ल्ड ओनली अपीयर्स और योर प्रॉब्लम्स ओनली अपीयर्स लाइक अ स्नेक, बट एक्चुअली इट इज अ रोप। तो जब आदमी उसके पास जाके डरता है स्नेक को देख के, अरे बाबा, घबरा जाता है, स्नेक है, स्नेक है, स्नेक है, लेकिन जब वो बहुत पास में आके देखता है तो क्या लगता है, अरे ये तो रोप है यार, कुछ नहीं, ऐसा ही सोचने का। फिर वो रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अलग बात है। तो हम लोग को भी ऐसे करना है, हमारा माइंड जो है ना, स्नेक नहीं है, रोप है, और उस रोप को हम लोग फेवरेबलनेस के हिसाब से यूज करेंगे, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। एंड देन योर वर्ल्ड विल बी क्रिएटेड दैट। ऑल राइट, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, मुझे आज्ञा दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा लगा, बहुत Thank you प्रसन्नता so हुई much. आप लोग से बात करके। थैंक यू डेलना एंड कश्मीरा एंड फॉर ऑल। और आप लोगों से बहुत बहुत आनंद हुआ मिलकर। बहुत लोग मेरे को जानते भी हैं, इसमें से कुछ मेरे संगा से भी हैं, और वो लोग ज्वाइन किए, तो थैंक यू। आप लोग फिर आए सुनने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। मीनाक्षी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। देन आप लोग से फिर मुलाकात होगी, गॉड विलिंग, ठीक है। चलिए, प्रणाम। Thank you. Thank you everyone for joining in. Bye. Take care.